Jai Jinendra, it gives me immense pleasure to welcome you all to this fifth MTM, that is Meet the Mentor series of Jito JBN Nahar Mentorship Program. With this pandemic, we are living in a disruptive era. Lot of Jain businesses are facing turbulences in these business times. And uncertain, this is really uncertain, and I call it as a VUCA world. I hope a lot of you know what is VUCA. VUCA is volatile, uncertain, complex, ambiguous world, and which is making us as business leaders think how we can plan, strategize, and thrive for growth. This is the time that we as Jito JBN mentorship team have created structure that will handhold these businesses through right mentorship guidance and support. In previous four detailed MTM series, we had Shri Motilal ji Oswal, Shri KL Jain ji, Shri Satish ji Parekh, Shri Ashok ji Shah on various critical aspects. They spoke on various critical aspects like building big businesses, winning game of growth in family businesses, managing challenges and growing change and growing through businesses in the changing times, and people management. All these previous sessions can be seen on Jito JBN page of YouTube, and the links are also available on jbn.org/mentorship program. Jito JBN mentorship program is functioning in two ways. One is monthly MTM series like this, what we conduct last Sunday of every month. And in this time we could not conduct it in this last week. So here we are conducting in this week. So monthly MTM series with eminent Jain business leaders, persons of highest achievements in their respective fields. Secondly, the first batch of mentees has already started working with these mentors, and that will be, you will start getting the results very shortly. And in this case, if you are keen to get mentorship and grow magnificently, write to us and we will assist with you, right mentor. Siddesh can post the link to join the mentoring program of Jito JBN as mentee. More than 70 plus mentors have already expressed their willingness to help businesses in scaling up and growing. So explore these opportunities through Jito JBN Nahar Mentorship Program. अपने जीवन को बदलने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है हम उन लोगों को ढूंढना जो पहले से ही वो हासिल कर चुके हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं, और उनके व्यवहार को अपने जीवन में अनुकरण करना. जैसे कि हम सभी जानते हैं, प्राचीन काल से मेंटोर सारथी की भूमिका अत्यधिक महत्व रही है. भले ही वो चंद्रगुप्त मौर्य हो जिन्हें चाणक्य के जैसे मेंटोर मिले, या हाल ही के दिनों में वो स्टीव जॉब्स या एलॉन मस्क हो जिन्हें जिम कैरेटल एंड बिल कैम्बेल के जैसे सारथी या मेंटोर मिले, और उन्होंने समय समय पर अपने जीवन में मेंटोर के महत्व का उल्लेख किया है. सो डायरेक्टली लेट्स डीप डाइव इनटू दिस फिफ्थ MTM series, that is Meet the Mentor series, and which happens every month, and getting focused answers to your questions from the mentors, which is the core objective. Every month we have mentors from different industry and who come on the platform to answer your focused questions. MTM is an initiative of Jito JBN mentorship program and one-on-one group mentoring. These are some other initiatives which I spoke about. I'm super excited to get these fireside answers to the number of questions which we have received from so many participants across city, across chapters. And here our esteemed mentor for today, Shri Rakesh Ji Jain, who is well known as Prakhar and is also a well-known management guru. So welcome Rakesh Ji here on this platform of MTM. And are we all ready to get our answers from him? So let's start our MTM session for today. Let me take the opportunity to introduce our mentor for the day. Though he needs no introduction, it's my privilege to introduce him. Rakesh Ji, a management guru, is well known as Prakhar. He is CMD of Prime Group, involved in real estate development and strategic growth consulting training for startups, scale up and revive the businesses. He has 40 plus huge experience in the business, industry and academics. He has an MBA with special courses from the world's top universities. As CEO of the group, he raised business to 500 crore. He has set up 3 top management institutes, and he has received Best Young Manager Award from AIMA, that is All India Management Association. He has also published research paper on managing competition, rural and agribusiness. He's also published 10 plus books
on managing for success. He has been helping entrepreneurs in progressing in businesses, guide them to create strategic plans for speedy and consistent growth, convert their traditional businesses into small enterprises and with the new age approaches, to achieve greatest heights and avoid pitfalls, and explore the available options for the business expansion. He is recipient of many awards. To name a few is Bal Samman Award by PM Indira Gandhi, Outstanding Young Personality Award by JP, World Peace Award by Rotary Foundation USA. Worldwide, he has traveled to more than 35 countries and he has published several research work. He has conducted seminars on Badloge to Badhoge in over 200 cities in India and empowered more than 1 lakh entrepreneurs and businesses. He is coaching, mentoring business organizations and individuals to explore their full potential. Absolutely wonderful to have you here, Rakesh ji, with all of us. So welcome to this MTM series. And now let me take the opportunity to introduce our moderator today, Shri Manvardhan Ji Baid. Manvardhan, we call him Man. Man is PGDM, PGDBM and XLRI from Jamshedpur University. So he is a director at Laurel Group since 2009 and the assets under the advisory in excess of 1,000 crore, growing at 31% CAGR. Laurel Securities Private Limited is a SEBI registered stockbroker and a member of National Stock Exchange. Laurel Advisory is one of the India's largest corporate bond dealers and Eastern India's leading mutual fund and fixed deposit distributor. He's worked as an investment advisor with ABN AMRO, Deutsche Bank, ICICI, and at London, Hong Kong, Singapore, Mumbai, Kolkata from 2004 to 2009. He was also Vice President, Association of National Exchanges Members of India, EIRC, that is Eastern Region. He is also co-convener of Terapanth Professional Forum, co-convener of JBN Kolkata, and esteemed member of our JBN Mentorship Committee. He is the first student in the history of XLRI to be selected for an international internship. Wonderful. And he was ranked 9th in the India in his CA Foundation examination. So welcome, Man, to this MTM series. And now let's deep dive into the topic for today, that is reset, revive, and thrive. So if I have seen further that it is the standing on the shoulders of the giant, that is said that by Isaac Newton. We all at Jito are blessed to have the giant businesses leaders with us who are there to guide, mentor, and handhold us. And with this, my absolute pleasure to hand over to our moderator, Man, for the session ahead. So over to you, Man, and welcome, Rakesh ji. Thank you, Divya ji. Welcome, Rakesh ji. It is an absolute honor and privilege for us to have you share your insights with the Jito fraternity. I would like to start with, with the first very basic question that everyone has on their minds. If you could start and share with us your journey, right from your upbringings to maybe how you started in life, and then we can further questions. Thank you very much. I'm delighted to be here. Thanks to Sanjay ji, Rishabh ji, Divya ji, and Man to interact with such an elite community. Your question, you have started from basic. So I would actually be glad to answer that question. In a way that I was born to the parents who were refugees. My parents lived in Punjab and they had to migrate during the partition because they were living in that part of Punjab which went to Pakistan. So they had to migrate to India, leaving everything, all the money, wealth they had created during the lifetime. They had to leave everything and just save their life and come here. So they started their life from zero. And that is the beginning of, and I say that, I always say this thing, that problems are good, because if you face the problem, you get the mettle to fight. And that mettle to fight
is the only thing which leads you in your lifetime. So problem which I started, let me tell you that first 25 years of my life, I lived in one room house. And then the journey has been very different. God has been so kind that God has given me successes one after another. And now at the end of my career path, I feel my duty that I should, the way I could develop, I should support others to develop, so that overall this country will develop. This is the mission I am working for the last 10 years. Fantastic. In fact, sir, when you mention about your story, I recently read a very beautiful comparison where this author compared Ram and Krishna. Ram was born in a lot of, with a lot of glamour, pomp, show, and Krishna was practically, he just about survived. I mean, people were trying to kill him from the day he was born. And yet, eventually, Ram's life was one of sorrow. There were hardships at every juncture. And Krishna's life was one of extreme joy, where it was. The start that you had, I can safely say that you will be like Krishna to this forum. And you've emerged in that manner. So where did you complete your schooling? Which place were you brought up in once you? Yeah, I have lived whole my life in Indore. I was born in Indore. I have lived whole my life in Indore. So I started from a Hindi medium school, and then migrated to better schools later on. And then I did my PG in commerce, and after that I started doing my MBA. And you won't believe, during those days an MBA would cost you 1,000 rupees a year, and that was also something very big for us to take a decision. But I thought that investing in education would be worthwhile. So even 1,000 rupees was a big money at that time. We invested, and I think the rest is what we have got from it. But besides that MBA, I have been a lifelong learner. So even today, every year I do 3 or 4 courses every year. So what kind of courses do you choose, and how do you go about selecting these courses? Well, now the things have become much easier. Earlier, I had to physically go everywhere, but now so many things are available online. So you can, like first time I went to Stanford, so that was tough. But then later on, when I started doing courses from Harvard and MIT and others, that was much easier. So everything is available now. But I focus on my domain area, that is business and entrepreneurship. So anything which is related to business and entrepreneurship, I am interested in that. So sir, आप शुरू से ही entrepreneurship के साथ ही start किए कि आपने कहीं पर काम किया, and then how did your career shape up? So I started my life business career at the age of 15 years independently into textile independent outlet. And at the age of 15, when I was going for purchasing to places like Mumbai, Surat, Kolkata, people used to ask me, "Kiske saath aaye ho?" And I was going alone, doing everything. But after 5 years, when I joined MBA, I thought that this is not the kind of life, a trader's life I want to live. So at that time, my uncle had just left his job and he was starting on his own. So I joined my uncle, left my running business, closed the shutters of running business, and joined my uncle. And he started with a small unit, and then later on we grew to almost 20 companies. So as group CEO, I worked with full passion, and that passion gave excellent results. And those results came out in the form that we were recognized as top 100 agribusiness companies of third world. We were recognized as by Economic Times as 17th net forex earner company in the country. We were recognized as one of the top soya company in the country.
We were recognized, even the educational institution I set up, they were recognized amongst top 25 B schools in the country, and the IPO I did was recognized as second best IPO of the year. Fantastic, fantastic. So, sir, in the course of this journey, I'm sure there were a lot of ups and downs. And one common query that most of sort of young entrepreneurs have is to how does one tackle especially the downs, especially the failures, and how do you come out of them? What is the so what were some challenges that you faced, and how did you come out? There are 2 or 3 issues involved in it. Number one, why does failure come to you? In business, there are 2 types of risk you take. Risk you have to take. There is no question about it. But there are 2 types of risk you take. One is blind risk and second is calculated risk. So if you take blind risk, the failure percentage will be much more. But if you take calculated risk, you can avoid unavoidable failures, right? So we were very focused on calculated risk. So I have seen that in our 20 plus different business segments we were doing, whatever unrelated diversification we did, they failed. But if we did any related diversification, maybe forward integration, backward integration, they all succeeded. So that means you have to focus on your core competency. And that is why I say that despite 100 years of existence, even today, IBM is still a computer company and Coca-Cola is still a soft drink company. They have not diversified beyond their core competency. So if you diversify beyond your core competency, you are bound to lose. That is one. Secondly, let me give you another example. Although we were into agribusiness, and in agribusiness only, also we failed. So we started manufacturing liquid glucose from tapioca starch. We took technology transfer from CFTRI Mysore. But CFTRI Mysore had actually developed this technology in laboratory. It had not commercialized it. So it was a challenge for us to commercialize it. But when we started doing it on a commercial scale, we found that it is not foolproof. It is not working as it should have been. So what we did, we thought that this is not the right thing to do to further dabble into this. So we abandoned that project. We gave up that project and then moved on. So sometimes, as they say in Chinese, there is a dictum. They say that don't fear about the spilt milk. Once milk is gone down, it's gone. You can't recover it. So once failure is gone, and if you think that you can't do anything about it, then forget it. So similarly, I had another venture where we had partnered with foreign universities, and especially Australian universities. 3 top Australian universities. They were Royal Melbourne Institute of Technology, Swinburne Institute of Technology, and Ballarat University. These 3 top Australian universities, and we started a twinning program where part of the education will be done in India and part of the education will finish in Australia. So this was a very, very cost-effective, time-saving arrangement. Very, very good program. But somehow during the process, we found that Indian media was dead against Australian education institutions, and they started publicizing about racism in Australia. So 2 years continuously, they started huge stories of racism in Australia on the Indian students. So we thought that this is not the right segment to be in, because if we send some students and parents are panicking that maybe something will happen to my son or daughter. So we thought that it is better to come out of that, because we don't want that panic situation to be created to the family. So although the program was very good, product was excellent, we were doing very well, but still we had to come out of it because it did not create goodwill amongst the customers. Fair point. So, one sort of common query that people have, and
which is very relevant now, is that you know, when you started to now, obviously the size and scale have so how was this journey of scaling up, and what would you suggest to a person who's starting out small as to what should be his approach towards scaling up his business? You see, there are three things which, or rather four things which actually helped us in scaling up to the unprecedented level. Like practically every year we added one new unit, practically every year. And how this happened was because of three things. One, we were not doing for making money. We were doing business for passion. Number one, we were so passionate. Number two, we had a strong teamwork. Not only top management was passionate, but even the whole top team was passionate. So we were all doing, like, enjoying doing work. We were enjoying it. And we had an environment where it was everybody's business. Whole team rather belong. There was a very strong belongingness. So this belongingness helped us a lot. And third factor was plowing back of profits. We did not spend much and we plowed back as much as possible. And with that generation, whatever we did, with minimum of external borrowing or external dependence, we tried to grow as big as possible. And fourth point was our focus on customers. We will find the niche, we will find the gaps with the customers' needs, and where our competitors are not doing so well, we would excel there and will thrive there. Very interesting. So how did you create this feeling of belonging amongst your team members? How did they, so often entrepreneurs have that passion, but to sort of trickle that down to team members is something, so वो आपने कैसे किया? उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है मालूम है मान जी, कि अक्सर लोग ये समझ लेते हैं ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी कंपनी है, ये मेरा पैसा है, और इसको अगर छोड़ दिया ना आपने, इसका मोह छोड़ दिया, तो वो बिलोंगिंगनेस अपने आप आती है. ये मोह छोड़ना पड़ता है कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, और जिस दिन वो आता है वो सब उल्टा हो जाता है. I have seen that right strategies have given growth and bad strategies give us failure also. So बिजनेस में जो सबसे बड़ी चीज होती है टीम वर्क, स्ट्रैटेजी एंड इंटेंट, राइट इंटेंट. मैं ऐसा बोलता हूं कि जिंदगी में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है. एक, अगर आपकी नीयत सही है, और दूसरा, अगर आपकी नीति सही है, तो नियति अपने आप सही हो जाएगी. बहुत सही बात है, एकदम वेरी वेल पुट. सो सर, जैसे क्या कहते हैं, आप जैसे अब जिस सॉर्ट ऑफ स्टेज पर हैं, एंड ये हम लोग एज यंग बिजनेसेस हम लोग इस पर स्ट्राइव करना चाहते हैं कि हम अपने बिजनेस को कंप्लीटली ऑटोमेट, या मतलब समझ लीजिए कि वो हमारे बिना चल पाए. तो क्या उस तरह का, वैसा आप अभी उस स्टेज पर, और आप खुद को वैसे किस तरह से कर पाए? देखिए, एक साथ 10 तरह के बिजनेस चलाना तो संभव ही तभी है जब आप उसको ऑटो मोड पे डाल पाओगे, तो उसके बगैर तो ये संभव ही नहीं है. और एनीबडी हु वांट्स टू ग्रो बिग, जिसका एम्बिशन लेवल बड़ा है, उसके लिए मेरे हिसाब से और कोई चॉइस ही नहीं है, उसको ये करना ही पड़ेगा. आई डोंट थिंक दिस इज अ क्वेश्चन कि आप ये करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो. अगर आप बड़े बनना करना ही पड़ेगा आपको, और उसके लिए दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है. नंबर वन, सिस्टम्स डेवलपमेंट. आपको पूरा सिस्टम के भरोसे काम चलाना पड़ेगा. रादर देन पीपल रनिंग द बिजनेस, योर सिस्टम शुड रन द बिजनेस. सिस्टम ड्रिवन अप्रोच होनी चाहिए. और दूसरा, आपको लोगों पे भरोसा होना चाहिए. तो लोगों की वैसी ग्रूमिंग करें, लोगों को वैसा मौका दे. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. व्हेन आई वेंट इन द मार्केट टू डू माय आईपीओ, दैट वाज इन 1984. आज से शायद ऑलमोस्ट 40 साल पहले की बात है. तो उस समय जब मैं आईपीओ लेकर आया, तो मेरे लिए आईपीओ क्या होता है मुझे कुछ पता ही नहीं था. उस समय इसको कैपिटल इश्यू बोलते थे, पब्लिक इशू बोलते थे. तो पब्लिक इशू कैसे होता है ये मुझे मालूम ही नहीं था, और जीरो आइडिया था मुझे पब्लिक इशू का. बट एक बार उसमें डूब गए तो इतना डूबते थे कि वी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय मेकिंग दिस अ सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल इशू ऑफ द ईयर बाय ओवर सब्सक्राइबिंग 46 टाइम्स. तो सर, जैसे अब हम जिस टाइम में चल रहे हैं,
ये दौर कोविड का, एंड ऑब्वियसली आपके इतने डाइवर्स बिजनेस इंटरेस्ट हैं, सम बिजनेसेस माइट हैव बोन द ब्रंट ऑफ कोविड इन अ बिग वे। तो कैसे आपने चीजें रियलाइन करी, हाउ डिड एंड कैसे? देखिए इसमें क्या करना पड़ता है अभी, अ, सिर्फ वेदर इट इज फॉर कोविड और अदरवाइज, हमेशा मैं ये कहता हूं कि जिस तरह से हम साल में एक बार पर्यूषण मनाते हैं, वो पर्यूषण क्यों मनाते हैं? फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ आवर बॉडी एंड सोल, राइट? इसी तरह से आपके बिजनेस का प्योरिफिकेशन और रीअसेसमेंट भी जरूरी है। साल में एक बार पर्यूषण आपको आपके बिजनेस के लिए भी मनाना चाहिए और उसको रीअसेस करना चाहिए कि इसमें आगे अब क्या चलेगा और क्या नहीं चलने वाला है, ट्रेंड क्या है, विच इज अ सनराइज सेक्टर, विच इज सनसेट सेक्टर, और किस एरिया में ग्रोथ करना, किस एरिया में ग्रोथ नहीं करना। और इसमें मुझे एक बहुत अच्छी चीज याद आती है कि एक मिस्टर FC कोहली थे, हु वाज रिटायरिंग फ्रॉम टाटा एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव। तो उस समय के टाटा के CMD JRD टाटा ने उनको कहा, चेयरमैन ऑफ कि TCS। आप ये कंप्यूटर में मुझे बहुत अच्छा फ्यूचर दिखता है, आप ये कंप्यूटर के फील्ड में कुछ बिजनेस करना शुरू कीजिए और हम आगे जाकर इसमें अच्छा करेंगे। 20 साल तक FC कोहली जी ने TCS चलाई, कुछ खास नहीं हुआ। बट टुडे इफ यू सी, TCS इज द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ टाटा ग्रुप नाउ, नॉट टाटा मोटर्स और टाटा स्टील। TCS इज नंबर 1। तो ये फोरसाइट होना बहुत जरूरी है कि क्या आगे चलने वाला है, किसमें आगे ज्यादा फोकस करना है, किसमें नहीं करना है। ये अगर आपको फोरसाइट है तो आप हमेशा रिवाइव रहेंगे। मैं स्टोरी पढ़ रहा था वीडियो में सैमसंग ग्रुप की, सैमसंग फ्रॉम साउथ कोरिया, हाउ दे स्टार्टेड 70 years बैक एंड व्हाट दे आर टुडे। इट्स टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। उसने कहां से शुरू किया और कहां आ गए, किस चीज से काम करना शुरू किया। ट्रेडिंग करते थे वो, कमोडिटी ट्रेडिंग करते थे, और आज उनकी पहचान किस रूप में है। तो आपको ये कंटिन्यूस रीअलाइनमेंट और रीस्ट्रक्चरिंग करते रहना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करेंगे तो कौन सा बिजनेस डाउन वाला जाने वाला है उस पर फोकस कम करो, और जिसमें ज्यादा संभावना है उसको आगे करो। और लॉन्गेविटी चाहिए बिजनेस में, सस्टेनेबिलिटी चाहिए बिजनेस में, तो ये रीस्ट्रक्चरिंग, रीअलाइनमेंट और रीडिजाइनिंग करते रहना पड़ेगा। और ये कोविड के समय में तो अब मजबूरी आ गई हमारे सामने कि अब तो ये करना ही है। और आज हमारे को दो तरह से असेस करना अपने बिजनेस को, कि एसेंशियल जो बिजनेस है वो सब चल रहे हैं बहुत अच्छे हैं, और जो नॉन इसेंशियल है वो नहीं चल रहे हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में इसेंशियल और नॉन इसेंशियल पोर्टफोलियो का भी एक प्रॉपर मिक्स होना चाहिए। कि अगर सभी आप नॉन इसेंशियल लग्जरी आइटम कर रहे हैं तो लग्जरी आइटम्स तो सभी अभी डाउन है, एकदम से डाउन है बिल्कुल भी। तो वो तो अभी जिनके पास भी डिस्पोजेबल इनकम से जो बिजनेस चलते हैं वो सब डाउन है अभी। और जो कंपलसरी खर्चा करना ही है, हेल्थ, हाइजीन, फूड, ये सब थ्राइव कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि आपका बिजनेस का पोर्टफोलियो भी जैसा है उसको मॉडिफाई करना चाहिए। और दूसरी बात कि आपने जैसे कोविड की बात की, तो कोविड के समय में भी हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म किया, एक नया शेप दिया, और उसके बावजूद भी वो रेलेवेंट नहीं थे, तब भी रेलेवेंट बन गए बिजनेस में आज के जमाने से। जैसे कि महिंद्रा ग्रुप की बात करें तो उन्होंने व्हीकल्स बनाने के साथ साथ वेंटिलेटर्स बनाना शुरू कर दिए, जिसकी खूब डिमांड है आज। हमारे यहाँ पर इंदौर के पास में प्रतिभा सिंटेक्स नाम की एक बहुत बड़ी कंपोजिट टेक्सटाइल मिल है, सिंथेटिक एंड कॉटन। तो उन्होंने PPE किट्स बनाने शुरू कर दिए। उनके यहाँ दुनिया के सारे ब्रांड के गारमेंट्स बनते थे, पर आज वो PPE किट्स में इंडिया में नंबर 1 हो गए। मेरे एक मित्र हैं जो पेंट्स एंड केमिकल्स का बिजनेस करते थे, उन्होंने सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया, और आज उनका बिजनेस 24 घंटे चल रहा है। तो अगर आप वक्त के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं तो डेफिनेटली देयर इज नो एंड टू योर सक्सेस। वेरी वेरी ट्रू सर। सो सर, आपने क्या क्या मॉडिफिकेशंस, इफ यू कुड शेयर सम, एंड वैसा सिंस आपका फोकस किस कहाँ शिफ्ट हुआ, नहीं, कैसे? हमारा तो मतलब मेन तो हमारा जैसे इसेंशियल्स में ही है ना, फूड इंडस्ट्री है, एग्री बिजनेस, फूड इंडस्ट्री, तो सारे ही इसेंशियल्स में, इसलिए वो कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है उसमें। एंड रियल एस्टेट साइड में भी आई बिलीव आप काफी एक्टिव हाँ, हैं। रियल इस्टेट में भी है। उसमें अभी हम लो लाइन कर रहे हैं, मतलब जिसको बोलते हैं कि एसेट बिल्डिंग कर रहे हैं, और अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं। और उसमें भी
अभी जो एक सेगमेंट बहुत तेजी से उभर के आया है वो है लो कॉस्ट हाउसिंग, उसका हमारा प्लानिंग चल रहा है जी। ओके, सो अगेन एक चैलेंज जो सब फेस करते हैं इज टाइम मैनेजमेंट, एंड अगेन आपके लिए ये बहुत रेलेवेंट इसलिए कि आपके इतने सारे कमिटमेंट्स हैं। सो एंड जितना आपसे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं वी रियलाइज कि आपका इंटेंट अपने कमिटमेंट्स बढ़ाने का है rather than, and people are कि भाई सोचते हैं कि कैसे टाइम बचाएं। You are one of the few people जो अभी भी that zeal रखते हैं कि भाई you want to take up more challenges. So आप कैसे, how should one go approach time, and आप कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना छोड़ना आना चाहिए। ये छोड़ना जो है ना, ये बहुत मुश्किल काम होता है जो लोग खुद करते हैं ना काम। और ये बात मैंने पेप्सिको के सीईओ से सीखी थी। वो ये बोलते थे कि इफ यू क्रिएट अ डिस्टेंस फ्रॉम योर बिजनेस। मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। वी वर इनटू मैन्युफैक्चरिंग वनस्पति हाइड्रोजनेटेड फैट्स। तो हमारी फैक्ट्री में हम हमारे साथ में श्रीराम फूड्स के लिए जॉब वर्क भी करते थे उस जमाने में। तो श्रीराम फूड्स के जो एमडी थे सिद्धार्थ श्रीराम, हु इज नाउ आल्सो एमडी ऑफ होंडा सीएल, होंडा श्रीराम, होंडा मोटर्स के भी। तो वो फैक्ट्री में साल में एक बार आते थे। तो मैं पूछता था कि ये साल में सिर्फ एक बार आते हैं जबकि फैक्ट्री भी दिल्ली में और वो भी दिल्ली में, उनका हेड ऑफिस भी दिल्ली में, तो फैक्ट्री में रेगुलर क्यों नहीं आते? तो उस समय मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये डिस्टेंस क्यों बना के रखना चाहिए। बट एक्चुअली स्पीकिंग, अगर आप ऑपरेशन से एक डिस्टेंस बना के रखेंगे तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपकी रिजल्ट जो है वो इंप्रूव हो जाते हैं, क्योंकि देन यू मेक पीपल अकाउंटेबल, एंड व्हेन पीपल आर अकाउंटेबल, आई हैव सीन विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि उससे आपका आउटपुट बढ़ जाता है एंड पीपल डू बेटर देन योर एक्सपेक्टेशंस। 90% पीपल विल डू बेटर देन देयर एक्सपेक्टेशंस, 10% मे नॉट डू दैट। बट वो 10% के पीछे हम 90% का पोटेंशियल लूज नहीं कर सकते। और जहां हमको अंदाजा है कि 10% कम करेंगे तो उसके लिए आप बैकअप प्लान रखें कुछ। वेरी वेरी ट्रू। सो जैसे प्रायोरिटाइज करना होता है आपको अपने वर्क में या अपने, तो आप किस एक्टिविटी को प्रायोरिटाइज करते हैं? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट यू फील इन योर बिजनेस जहां पर आपका सबसे ज्यादा ध्यान जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर मल्टीपल एक्टिविटीज, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है परफॉर्मेंस रिव्यू। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस को रिव्यू आपने समय पे करते रहे और आपको पता चल रहा है कि कहां सही चल रहा है कहां नहीं सही चल रहा, और उसको आप पिन पॉइंट करके, आप फिगर देख के, रिपोर्ट देख के आप पिन पॉइंट कर सकते हो कि यहां गलत चल रहा है, इसको सही करो। अगर ये आप में एक नेक आ गया तो फिर आपको कहीं खुद इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो सर, कुछ परफॉर्मेंस रिव्यू के अराउंड सम ऑफ योर प्रैक्टिकल लर्निंग्स, जो हम थियरी तो, बट जिन सम सॉर्ट ऑफ जो आपके लर्निंग से हम एम्ब्रेस कर सम टिडबिट्स दैट। तो हमारे यहाँ जैसे क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, वो इज अ सैक्रोसैंक्ट थिंग। सैक्रोसैंक्ट मतलब बाकी सब नॉन प्रायोरिटी है, लेकिन ये टॉप प्रायोरिटी है। Okay. Operations can stop, but performance review will not stop. This is the system, the priority which we had set, और उसके कारण लोगों को समझ में आया कि ये सबसे प्रायोरिटी और मुझे जवाब देना है, मुझे जवाब देना है। और अगर सामने वाले को सिर्फ इतनी फीलिंग आ गई कि मुझे जवाब देना है, तो उसका परफॉर्मेंस बहुत डिफरेंट हो जाएगा अपने आप ही। इट वर्क साइकोलॉजिकली। वेरी वेरी ट्रू। एंड और उसमें हम कॉस्ट कंट्रोल भी करते थे, कॉस्ट कंट्रोल भी करते हैं, उसके साथ में हम कस्टमर फीडबैक भी लेते हैं, फ्यूचर प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग भी कंट्रोल करते हैं, हर चीज कंट्रोल करते हैं उसमें। फैंटास्टिक। सो सर, जब आप ये परफॉर्मेंस रिव्यूज करते हैं, आई एम श्योर देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आउट परफॉर्म, एंड विच इज, जिनको रिवॉर्ड करना या वो एक पार्ट तो बहुत अच्छा लगता है। देयर इज ऑलवेज दैट पार्ट कि जहां पर ये रहता है कि कुछ पीपल लैग,
एंड समटाइम्स दे आर पीपल हु आर क्लोज टू अस, कोई हो सकता है बहुत पुराना एम्प्लॉय हो, कोई हो सकता है अपना रिलेटिव हो, तो वो पार्ट आप कैसे एड्रेस करते हैं? हाउ डू यू हैंडल दोस? देखिए, इसमें दो बातें बताना चाहूंगा मैं। एक तो ये है कि किसी को रिवार्ड करना है फॉर गुड परफॉर्मेंस, तो रिवार्ड करने में हमेशा ये जरूरी नहीं है कि मॉनेटरी रिवार्ड ही दिया जाए। नॉन मॉनेटरी रिवार्ड्स प्ले मोर इंपॉर्टेंट रोल देन दी मॉनेटरी रिवार्ड्स। अगर आपने एम्प्लॉय ऑफ द वीक और एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का फोटोग्राफ आपके रिसेप्शन पे लगा दिया, इसमें आपको पैसा एक नहीं देना है, लेकिन उसका जो मॉरल बूस्ट होता है वो आप बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड इमेजिनेशन होता है। तो मॉनेटरी रिवार्ड से ज्यादा फोकस नॉन मॉनेटरी रिवार्ड पे होना चाहिए। दूसरी बात कि जो लोग अंडर परफॉर्म करते हैं और हमारे क्लोज हैं, तो उसके लिए तरीका ये होता है कि उनको बहुत अच्छी मेंटरिंग चाहिए। मतलब पब्लिकली तो आप उनको डील नहीं कर सकते उस तरीके से, देन इन क्लोज सर्कल यू हैव टू डील विद देम पर्सनली। उनको बुला के समझाना पड़ेगा सो दैट दे डोंट टेक दिस एज अ क्रिटिसिज्म बट रादर एज वैल्यू फॉर इंप्रूवमेंट। मैं आपको इसमें मैंने कई चीजें कई लोगों से सीखी हैं, और ये चीज जो मैंने सीखी है वो सीखी है वर्ल्ड के मोस्ट रिनाउंड एंड मोस्ट एक्सपीरियंस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर कोनोसुके मात्सुशिता, हु हैज बीन फाउंडर ऑफ नेशनल एंड पैनासोनिक। तो वो मात्सुशिता बोलते हैं कि एक दिन एक एम्प्लॉय को मैंने किसी काम के लिए डांटा कि वो उसने काम सही नहीं किया था, तो उसने गुस्से में आके वापस गया और मुझे रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया। तो मैंने उसको बुलाया और मैंने उससे पूछा कि एक्चुअली यू शुड बी थैंकफुल फॉर दिस। ये क्या हो रहा है मान जी? रियली श्योर सिद्धेश जी, आई थिंक कुछ ओके ओके। तो उसने ये उसको मेंटरिंग करके ये समझाया कि आपकी लाइफ में अगर कोई व्यक्ति आपकी गलतियां निकालने वाला है तो यू शुड बी थैंकफुल बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड इन योर बेटरमेंट। वो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। और अगर अनफॉर्चुनेटली मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है क्योंकि आई एम एट द टॉप, बट यू आर फॉर्चुनेट कि आपकी कोई गलती निकाल के आपको और बेहतर बनाने के लिए कोई somebody इज इंटरेस्टेड इन यू। तो उस व्यक्ति ने उनके सामने ही आकर वो रेजिग्नेशन फाड़ दिया, और उसके बाद में दैट पर्सन बिकेम वन ऑफ देयर वेरी वेरी सीनियर एम्प्लॉय एट द टिल द एंड, एंड ही वाज हेडिंग वन इंडिपेंडेंट डिवीजन। तो ये लोगों से सीख के समझ में आता है। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग ऑटोबायोग्राफीज, और उसमें अकियो मोरिटा की, सोनी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इतनी सारी प्रॉब्लम्स, जब 2 साल की इन्वेंट्री इकट्ठी हो गई उनके यहाँ पर, और उन्होंने अब फैक्ट्री आगे चलने के लिए पूरा चक्का जाम हो गया, तो क्या करें? ये कोविड जैसा ही समय था वो भी, कि 2 साल की इन्वेंट्री हो गई और आगे गाड़ी रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, फैक्ट्री आगे चलाएं तो कैसे चलाएं, लोगों को एम्प्लॉइज को सैलरी देने को पैसे नहीं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने सारे के सारे एम्प्लॉइज, चाहे वो अकाउंटिंग में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, किसी भी फील्ड में हो, उन सबको कंपनी का सेल्समैन बना दिया। दैट योर जॉब इज टू सेल द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। और यकीन मानिए वो 2 साल का प्रोडक्ट जो है वो 3 महीने में बिक गया, और वो कंपनी अब दोबारा नई स्पीड से चालू हो गई। सो दिस इज हाउ यू लर्न फ्रॉम अदर्स। सो यू डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे आप सीख सकते हैं, और अगर ये सीखने की आदत, एक लर्निंग एटीट्यूड आप में है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फार। सो क्या कहते हैं आपका अप्रोच, एंड व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस ऑन फाइनेंसिंग इन अ बिजनेस? कि क्या कहते हैं, जैसे कईयों का थॉट प्रोसेस अराउंड डेट, अभी इन दिस स्टार्टअप कल्चर ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ कैपिटल रेजिंग, तो इस चीज के अराउंड यू वर वन ऑफ द अर्ली पीपल। 84 में तो हार्डली कोई आईपीओ करता था, तब यू वर इनोवेटिव इनफ कि आपने आईपीओ किया। सो नाउ व्हाट आर योर थॉट्स? आप किस इस बारे में कैसे, हाउ शुड वन फ्रेम देयर माइंड? बेसिकली मान जी, आई बिलोंग टू कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट, और मैं ये समझता हूं कि जब तक आपका स्टेक सफिशिएंट नहीं होगा, बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। यू शुड हैव सफिशिएंट स्टेक इन योर बिजनेस, एंड डेट हो या पब्लिक मनी हो,
चाहे पी मनी हो, चाहे वो वेंचर वीसी फंड हो, चाहे आईपीओ की मनी हो, एक्सटर्नल मनी जो भी है किसी भी फॉर्म में हो, दैट शुड बी सबऑर्डिनेटेड और सेकेंडरी टू योर ओन फंडिंग। अगर आपकी फंडिंग प्राइमरी रहेगी तो आपका स्टेक बिजनेस में रहेगा, आपका इंटरेस्ट बिजनेस में रहेगा, आप उस बिजनेस को पूरी जान लगा के चलाओगे। जिस दिन ये खत्म हुआ उस दिन इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और ऐसे कई बिजनेस को खत्म होते देखा है मैंने। अभी कल ही मैं सुन रहा था इनको शर्मा जी को कि वो बता रहे थे कि स्टार्टअप्स में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप फंडिंग 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 के चक्कर में कहीं ऐसा ना कर दें कि आपकी इक्विटी बहुत डाइल्यूट हो जाए, और आपको ये होना चाहिए कि 5 सीरीज ऑफ फंड्स भी हो जाए, उसके बावजूद भी आपके पास 20-30% इक्विटी तो बची हुई रहनी ही चाहिए फिर भी। और यही गलती करते हैं लोग ज्यादा पैसे के लालच में पूरे ही खत्म कर देते हैं, तो वो आपकी मेहनत का फायदा आपको मिल ही नहीं पाता फिर, और आपका इंटरेस्ट उस बिजनेस में खत्म हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि जो 2 सबसे बड़े सोर्सेस है बिजनेस में फंडिंग के, नंबर 1 इज यू फ्रॉम योर प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। बहुत बड़ा सोर्स होता है प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, और ये हमने देखा है कि हमने जितनी भी ग्रोथ की वो प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट से ही की सारी। नंबर 2 जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ फंडिंग होता है वो होता है आपका कस्टमर। इफ योर कस्टमर इज सेटिस्फाइड विद योर प्रोडक्ट, वो आपकी पेमेंट टर्म्स पे एग्री करता है, और उसके लिए उसके पेमेंट टर्म्स अगर फेवरेबल हो जाए तो आपको ज्यादा फंडिंग की जरूरत ही नहीं होती बिजनेस में। वेरी वेरी ट्रू सर। सर इसमें वन मोर क्वेश्चन कि जैसे आपने एक्सट्रीम डिसिप्लिन दिखाया और फोकस टुवर्ड्स वेयर यू वर एबल टू प्लाउ बैक प्रॉफिट्स। ऑफन व्हाट हैपेंस विद यंगस्टर्स इज कि भाई पहली बार अर्निंग हमारे पास आती है तो ऑब्वियसली बहुत डिस्ट्रैक्शंस, बहुत, सो हाउ डज वन रेजिस्ट दैट अर्ज? आपका ये फोकस आपने किस तरह से ये बात तो हमें हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाले भी बोलते थे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाले हमको बोलते थे कि यहाँ पर जो नया एंटरप्रेन्योर आता है वो पहली बार तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आता है, दूसरी बार वो अपनी छोटी गाड़ी से आता है, और तीसरी बार वो अपनी बड़ी मर्सिडीज लेके आता है, लेकिन आप लोगों में हमने ये बात नहीं देखी। तो ये अल्टीमेटली इट्स अ माइंडसेट, इट्स अबाउट योर माइंडसेट कि आप अपने बिजनेस पे फोकस्ड हैं या अपने आप पे फोकस्ड हैं। और दूसरा, आप इंटरनल स्ट्रेंथ बिल्टअप करना चाहते हैं या शो ऑफ करना चाहते हैं। सो अगर आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ बिल्टअप हो गई तो आपको किसी को दिखाने की क्या जरूरत है कि मैं क्या हूं और मेरे पास क्या है। वेरी वेरी ट्रू। सो अगेन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आई मेट वन ऑफ द बिगेस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ दिस कंट्री। उनका नाम था दीपचंद जी गार्डी। हम लोग एक बार डिनर पे साथ में थे। मेरे पास में बैठे हुए एक व्यक्ति मेरे को बोलते हैं, यार देखा आपने वो गाड़ी जी का शर्ट का कॉलर भी फटा हुआ है। मैंने कहा जो व्यक्ति रोज 5 लाख रुपए डोनेशन दे रहा है एवरी डे, उसको क्या परवाह है कि मैं कैसा दिखता हूं। और जो व्यक्ति उनसे ले रहा है रोज 5 लाख रुपए डोनेशन, उसको भी क्या परवाह पड़ी है कि वो कैसा दिखता है और क्या है। सो हु केयर्स। वेरी ट्रू, एकदम सही बात है कि ये हमारे मन में ज्यादा चीजें रहती है कि हम, वैसा दूसरे वाले को इतना कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। सर एक क्वेश्चन दैट सॉर्ट ऑफ यहाँ पर हम लोग के पास आया है, विच आई थॉट आई पुट अक्रॉस टू यू, कि एजुकेशन अपने आप में इज नॉट वन ऑफ द इजीएस्ट लाइंस, एंड आपने वो लाइन भी चुनी है। एंड सो हाउ डिड यू गो अबाउट सिलेक्टिंग दैट लाइन, एंड कैसे आपने इस कम्पिटिटिव स्पेस में अच्छी इंस्टीट्यूशन को तैयार किया? देखिए, कॉम्पिटिटिव स्पेस तो नहीं थी उस समय जब हमने शुरू किया। वी हैड द प्राइम मूवर एडवांटेज। वी स्टार्टेड फर्स्ट प्राइवेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टेट व्हेन इट वाज कंबाइंड, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ कंबाइंड। तो हमने कंबाइंड स्टेट का फर्स्ट प्राइवेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, उस समय प्राइवेटाइजेशन हुआ ही हुआ था, और हमने फर्स्ट इंस्टीट्यूशन शुरू किया। But then we created the level which others are comparing them with.
सो वी हैव बीन रेजिंग अवर बार एवरी टाइम। और दूसरा उसमें सबसे बड़ा ये रहा कि मेरे जो खुद मेरे प्रोफेसर्स रहे ड्यूरिंग माय एमबीए, मैं जिनके साथ में रिसर्च कर रहा था, वो लोग हमारे यूनिवर्सिटीज के, हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स बने। तो उनमें एक कॉन्फिडेंस था, उनसे एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग थी, तो वी हैड अ वेरी गुड ट्यूनिंग ऑल्सो। तो बेस्ट ऑफ द पीपल वी कुड अट्रैक्ट दैट वे। और सबसे सही बात तो होती है इंटेंट की। अगर आपका इंटेंट सही है, आप शॉर्टकट नहीं करना चाहते हो, तो आई थिंक किसी भी फील्ड में हो, देयर इज हार्डली एनी कंपटीशन। सो स्पेसिफिकली एजुकेशन के अराउंड में इसलिए पूछा कि एजुकेशन इतना गुडविल ओरिएंटेड होता है कि आज भी जैसे हम पुराने नाम और मतलब, तो इसमें आपने हाउ डिड यू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स? In fact, at that time, market was already existing. Our job was just to satisfy them, give them what government institutions could not give, so give something better than that, real life practical learning, and they got attracted. तो जो गवर्नमेंट की बेस्ट यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूशंस थे, उनसे बेटर हमारा इंस्टीट्यूट अपने आप बन गया, एंड वी वर रैंक्ड अमंग्स टॉप 25 बी स्कूल्स इन द कंट्री। और एक बार आपकी रैंकिंग उस लेवल पे पहुंच जाती है, फिर उसके बाद आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं होती, फिर उसके बाद आपको सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करने की जरूरत होती है। वेरी वेरी ट्रू। एंड विद एन एजुकेशन लाइन, आई थिंक एक बार गुडविल बन जाती है, इट स्टेज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एब्सोल्युटली। सर, एक क्वेश्चन जो हम लोग के पास चैट बॉक्स में आया है is around global brands. Businesses, अब businesses are based on platforms. So again, because they are based on platforms, they are very scalable. And how should one approach on building these kind of businesses? Yeah, what is the mindset that one should take towards these businesses? देखिए, ग्लोबल ब्रांड में मैं आपको बताऊं कि वी वर वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर इन इंडिया, फ्रॉम इंडिया। तो उस समय मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि किस तरह से हमने कस्टमर फोकस किया, और कस्टमर के ऊपर फोकस करने से हमारे को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट मिले। सोया मील विच वी वर सेलिंग इज सोल्ड एज अ कमोडिटी। इट इज लाइक वी सेल शुगर, soya meal was sold like that. But we focused on fulfilling specific needs of the customers. उसको कितना प्रोटीन लेवल का प्रोडक्ट चाहिए, उसको किस मैश का चाहिए, उसको किस पैकिंग में चाहिए, उसको कैसी ट्रांसपोर्टेशन, उसको कैसा डिलीवरी सिस्टम चाहिए, जैसा उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम देने को तैयार होते थे। और उसका कारण ये हुआ कि एक कमोडिटी को हमने ब्रांड में कन्वर्ट कर दिया ग्लोबली। So very very true. ये granularity that is required in the business, ये बहुत बहुत जरूरी है। And the more I तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। Once I was sitting with, I had gone to Saudi Arabia to one of our major customer. मैं उस दिन उनके ऑफिस में गया, तो the general manager who used to look after the business was not there. He was on leave at that day. तो मैंने वहाँ ऑफिस में पूछा और कौन है, तो मालूम पड़ा कि वो शेख साहब हैं खाली, जो मालिक है मतलब। तो मैंने कहा उनसे मिल लूं, तो वो ऑफिस में बोलते हैं कि नहीं, शेख साहब तो बिजनेस देखते ही नहीं है, ही डजंट नो एबीसीडी ऑफ दिस। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आई विल जस्ट मेक अ कर्टसी कॉल। तो उन्होंने कहा वैसे वो मिलते नहीं है किसी से भी। तो मैंने कहा मैं कार्ड भेज देता हूँ, लेट मी सी इफ आई कैन मेक अ कर्टसी कॉल। मैंने उनको कार्ड भेजा, ही इनवाइटेड मी, और यू वोंट बिलीव, मैं 5 मिनट कर्टसी कॉल के लिए उनसे मिलने गया था, एंड वी मेट फॉर 5 आवर्स, वी डिस्कस फॉर 5 आवर्स। और बाहर निकलकर जब आए तो पूरा ऑफिस बंद हो चुका था, उनको भी रियलाइज नहीं हुआ क्या हुआ। एंड देन ही केम टू ड्रॉप मी टू माय होटल, एंड नेक्स्ट डे जब मैं उनके ऑफिस में ऑर्डर के लिए गया, तो मुझे ऑर्डर के लिए बोलना नहीं पड़ा कि आप ऑर्डर दीजिए मुझे, क्योंकि उन लोगों ने कभी ऐसा देखा नहीं था कि शेख साहब ने 5 घंटे किसी से मीटिंग की और उनको छोड़ने वो खुद गए हो। तो बिकॉज यू आर नॉट डिस्कसिंग बिजनेस, यू आर डिस्कसिंग broader aspects of business and economy and industry specifically. तो वो चीज जो होती है ना, वो एक सेल्समैन नहीं डिस्कस कर सकता, आप डिस्कस कर सकते हो, बिकॉज यू ओन द बिजनेस, यू हैव द वाइडर नॉलेज। बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज
I was selected by Rabobank. Rabobank is world's #1 commodity bank from Holland, and they selected me to be representing in Global Oil Convention in Brazil to represent Indian agribusiness. तो ये जो एक सिचुएशन लीडरशिप एक पोजीशन अपन बनाते हैं, ये अपने आप एक ब्रांड को इस्टेब्लिश करती है. आज दीपक पारेख इन फाइनेंस इंडस्ट्री इज अ ब्रांड, और उसको एचडीएफसी के लिए उसको कैंपेन करने की जरूरत नहीं पड़ती. एचडीएफसी अपने आप उसके नाम से चलता है. सो अगर आप इंडस्ट्री में लीडरशिप रोल प्ले करते हो, अगर आप उसकी एक ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए काम करते हो, तो आप अपने आप आगे बढ़ जाते हो. मुझे नहीं लगता कि उसके लिए कोई अलग से एफर्ट्स करना पड़ता है. आपको अलग से किसी को बोलना पड़ेगा कि मुझे ऑर्डर दो, मेरा काम करना चाहिए, जरूरत ही नहीं पड़ती है. आप अपने सिंसियर एफर्ट्स करते जाओ, रिजल्ट अपने आप मिलते चले जाते हैं. सर, एक क्वेश्चन which has come in the chat box and which I feel is very relevant, कि आजकल there is a concept of social enterprise. जैसा कि आपने इसमें कहा ही कि आप बेसिकली एक लार्जर गुड के हिसाब से, एक लार्जर थॉट के हिसाब से, तो उसको एक्सटेंड करते हुए कि an enterprise in itself which is basically for the larger good which benefits, तो उसके अराउंड व्हाट इज द थॉट, व्हाट इज द फ्यूचर फॉर दिस? आज स्टार्टअप इकोसिस्टम में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा स्कोप हो गया है. अगर आप ईडीआई में जाएंगे, ईडीआई गांधीनगर में जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वहां पर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एक सेपरेट स्पेशलाइजेशन होता है. और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वो मतलब जिसमें सोशल बेनिफिट्स हों, आप सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक फॉर प्रॉफिट बिजनेस भी हो जाए, लेकिन उसमें सोशल पर्पस सर्व होता हो. अगर इस तरह का बिजनेस मॉडल अगर आप डेवलप करते हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल बनता है. और अभी तो आजकल तो एक और नया कॉन्सेप्ट चला है जिसको बोलते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन. ट्रिपल बॉटम लाइन का मतलब यह है कि आप प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, आप सोसाइटी की सेवा भी कर रहे हैं, और आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं. अगर आप ये ट्रिपल बॉटम लाइन की कंपनी बनते हैं, तो आपकी वैल्यू मार्केट में कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है. तो ये सब सोशल पर्पस के आसपास बिजनेस भी डाइवर्ट हो रहे हैं, और ऐसे बिजनेसेस को सुपर सक्सेस मिल रही है. ट्रू, वेरी ट्रू. एंड अगेन मेरे ख्याल से जैसा आपने पहले कहा था कि दिस इज ऑल्सो अबाउट अ माइंडसेट, कि मतलब आई थिंक समवेयर पहला पार्ट यही हो जाता है कि इस तरह का माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है, एंड देन वन कैन यू नो गो इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड वे टू ग्रो दिस. सो मे बी आपको ये एग्जांपल हम लोग के साथ अगर शेयर कर सके एक ऐसे बिजनेस का, ट्रिपल बॉटम लाइन बिजनेस. मैं सामने बताता हूँ आपको. जैन इरिगेशन, भंवरलाल जी जैन के साथ में मैंने बहुत डिस्कस किया इस पे. He is the only company from India which has triple bottom line, और जिस पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की है. और भंवरलाल जी जैन जब वहां हार्वर्ड यूनिवर्सिटी देखने गए थे, तो वहां के जो डीन थे नितिन नौरिया, उन्होंने उनको खुद बुलाकर उनसे बोला कि आपके ऊपर तो हमारे पास रिसर्च पूरी अवेलेबल है, आप तो यहाँ बैठिए, हमसे बात करिए. वेरी वेरी ट्रू, noteworthy example. Divya ji, any questions from your side? Any thoughts? Yes, there is one question from the one of the participant. How can we be away from the operations if it is a service industry where people or the customers want the personalized attention of the, I mean, the professionals specifically? नहीं, ये भी मिथ है कि पर्सनल अटेंशन चाहिए. अब मेरे को बताइए कि ज्वेलरी का बिजनेस जो करते हैं लोग, उनको ये लगता है कि दुकान पे तो मुझे ही बैठना चाहिए, ज्वेलरी का धंधा कर रहे हैं, अपन नहीं बैठेंगे तो लोग खा जाएंगे, है ना. यही माइंडसेट रहता है. लेकिन आप देखें कि अभी कल्याण ज्वेलर्स या इसके जैसे कई बिजनेस हैं जिन्होंने इसको पूरे एक कॉर्पोरेट लेवल में कन्वर्ट कर दिया. अब वहां उनको दुकान पे बैठने की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही है. इसका मतलब है कि जो जिस बिजनेस में बहुत ज्यादा पर्सनलाइज सर्विस की जरूरत है और वो फेथ और ट्रस्ट के बेस पे ही है, वहां भी सिस्टम ओरिएंटेशन आ सकता है. अगर कल्याण ज्वेलर्स चल सकता है, तो मलाबार ज्वेलर्स चल सकता है, अगर तो आपका बिजनेस भी चल सकता है. Perfect. Thank you so much. Thank you.
So I So think one question, मेरे ख्याल से yes, go ahead, Maan. so क्या कहते हैं, आप एक काफी diverse set of businesses run कर रहे हैं out of Indore. So we obviously have a lot of participants who are even from places which are much smaller than Indore. अब तो काफी connectivity, कई चीजें आ गई है, but otherwise लोगों को ऐसा लगता है कि because of the location that we are in, थोड़े तो सर उसका कुछ advantages and disadvantages दोनों share करिए, and how one can overcome those things. यही क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था भंवरलाल जी से, और क्वेश्चन ये पूछा था कि आप एक ग्लोबल कंपनी बना रहे हैं या बन भी गई आपकी कंपनी, पर आपका हेडक्वार्टर जलगांव में है, ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह की कंपनी का हेडक्वार्टर तो बॉम्बे में या न्यूयॉर्क में होना चाहिए। तो भंवरलाल जी ने जो जवाब दिया था, वो जवाब ये दिया था कि वी आर इनटू एग्री बिजनेस, एंड एग्री बिजनेस मतलब जमीन से जुड़ा होना चाहिए। जिस दिन मैंने अपना हेडक्वार्टर बॉम्बे में या न्यूयॉर्क में ले गए, उस दिन मेरा धंधा खत्म हो जाएगा। तो जहां आपकी रूट्स हैं, वहां से कनेक्टेड आपको होना चाहिए। तो अगर आपका बिजनेस आपके रूट से कनेक्टेड है, अगर आप छोटे शहर में, अब आप देखें एक एग्जांपल, जोहो नाम की कंपनी है जिसने अपना हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को से हटाकर मदुरई के पास में एक छोटे से गांव में ट्रांसफर कर दिया। और जोहो उसके बाद से, आपको पता है, आप मीडिया में देखते हैं, पढ़ते हैं कि जोहो जब से इंडिया में उसका हेडक्वार्टर ट्रांसफर हुआ है, तब से उसका बिजनेस बढ़ा या घटा? ऑब्वियसली बढ़ा है, बहुत बड़ा है। तो ये जोहो जैसा मॉडल हमें लेने की जरूरत है कि यू हैव टू गो बैक टू बेसिक्स, और अगर जितना आप बैक टू बेसिक्स जाएंगे उतना ग्रो करेंगे। तो ये भी मेरे को एक ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा लगा कि समवेयर आपके लाइफ में भी कुछ मेंटर्स जैसे भंवरलाल जी हो गए या एंड दैट वेज, एंड हु सीम टू हैव प्लेड अ वेरी बिग रोल। तो मे बी नो डाउट अबाउट इट मान जी। इनफैक्ट मेरे लाइफ में मेंटोर्स का रोल तब आ गया जब मैं 5th क्लास में था, और वो उस समय में 2 साल के अंदर ये सिचुएशन आ गई कि नेक्स्ट 2 इयर्स में उन मेंटर्स के मुझे मिलने के बाद में, और वो मेंटर्स मतलब नॉट इन रियल टर्म्स मेंटर्स के जैसे हम मेंटर देखते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वैसे नहीं। मतलब कुछ साधु संत थे मेरे मेंटर्स, कुछ टीचर्स थे मेरे मेंटर्स, पर इन सबको मिला के उन्होंने मेरी लाइफ को शेप किया, और उस शेप देने में मतलब एक अजीब सा परिवर्तन हुआ मुझ में। एक मेरी लाइफस्टाइल, मेरी हैबिट्स उससे फॉर्म हुई, और उसका नतीजा ये हुआ कि मैं 5th क्लास में मुझे मेंटर्स मिले, और बाय द टाइम आई रीच 7th क्लास आई हैड इन माय हैंड बेस्ट चाइल्ड अवार्ड फ्रॉम इंदिरा गांधी। Wow. तो मेंटर्स का तो अनबिलीवेबल रोल है, और मेरी लाइफ में तो बहुत सारे मतलब इस तरह के मेंटर्स हैं जिनको मैं यूज करता रहा हूं, जिनका मेरी लाइफ में मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन इतना बड़ा इंपैक्ट है उनकी मेरे लाइफ पे। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि जिनका मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस है। मैंने ये जो बिजनेस डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें मैं बता रहा हूं कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को मैं अपना एम्पावरमेंट कर पाया हूं। इस प्रोग्राम की शुरुआत कहां से की मैंने? मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था मदुरई में, तमिलनाडु में, और मैंने मदुरई की टीम को बोला कि मैं एक दिन पहले आऊंगा, और पहले मैं मदुरई से रामेश्वरम जाऊंगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के घर पे जाके माथा टेकूंगा, उसके बाद मेरे इस मिशन की शुरुआत करूंगा। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, Very inspiring. Thank you. So I think there are a lot of other questions also coming up, but because of the paucity of time, और ज़्यादा हम questions ले नहीं पाएंगे। लेकिन राकेश जी, इतने wonderful insights के लिए thank you very very much, and we look forward कि आपका mentoring हमको भी मिलता रहे हमारे platform पे, जीतो के platform पे जो members हैं, businesses हैं, उनको भी मिलता रहे। And thank you very much for being here. And I will now hand over to Sanjay ji for the closing remarks, and then to Rishabh ji for the vote of thanks. So over to you, Sanjay ji. Thank you very much, Rakesh ji, for taking out time on a Sunday. And it was a very impressive and very enlightening talk. And I just want to tell the whole audience here that this JBN mentorship program that we are running, the key to this is that we try to answer your queries rather than tell what we feel you should know.
That's a very big difference in mentorship and a normal session that you normally have. I know there are a lot of great talks we have, but here all the questions which Man asked were curated from the questions we got from our Jito members. And those questions were curated, aggregated, and then discussed with Rakesh ji. So please keep asking questions. Please stay with us. And the whole idea is to try to answer your queries. I know there are many more questions. Unfortunately, time is always short. When we get into, when we have a great speaker who has a 360-degree vision and such a great audience, we all would like mentorship to be very focused. I think so. Siddesh would have shared our mentor-mentee links. Whoever wants to be a mentor or a mentee, one-to-one. There are many people who have various queries, want to develop their business, have issues in businesses, and are looking for guiders, mentors. JBN can give you that, but you need to give the link and ask what you want. Asking what you want is the most important thing. Most of us never know what we want, and so we don't get the answers. So I'll always say, have a clear thought. Siddesh has already posted. You can just click at the link. If you want to get a mentor, you can just click on the link, tell your industry, tell what field you're looking, and we'll find you the right mentor who will guide you and be like a elder brother to you. But he will only answer what you ask. So mentorship runs really around asking the right questions and not being shy to ask questions. Many of us right from school days have always been very shy. कि भाई अगर हम क्लास में कुछ पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि अरे यार इनको आता नहीं है. मैं बोल रहा हूँ, it is always better to be sound stupid, feel stupid in a limited audience rather than be ignorant for your whole life. So पूछने से ही आपको जवाब मिलेगा, मांगने से कोई आपको कुछ देगा. So JBN is all around that, whether it is mentorship, knowledge, getting business opportunities, getting something that you need in your business. So please be joined, be connected with your chapters, your chapter conveners, because they are the window through which they will open you up to the whole JBN national network, international network, which will give you opportunities to learn, do business, understand. Any problem practically you'll find somewhere in the country will be able to probably help you, guide you, and probably even give you the right solution, tailor-made solution. So thanks to Divya ji, who is our JBN mentorship convener. We've been working relentlessly on getting everything in place. Man, who is the co-convener, and Rahul Daga, I don't know if he's there today. The JBN mentorship team is doing a great job. If any of you feel you have a very deep knowledge about mentorship, you've been involved and you can add value, you can contact Divya ji to even be a team member. JBN always looks for people who want to do something on either side of the game. So let's have a good Sunday. Stay healthy. I know it's a very critical time, and such sessions are not only to keep you mentally healthy, keep you focused on what you have to do while you take care of yourself. कोविड जल्दी से नहीं जाने वाला, हमें सबको पता है, लेकिन हम उससे अपने आप को बचा जरूर सकते हैं जैसे हम बिजनेस को बचा रहे हैं. Thank you very much, and on to Rishabh ji for a vote of thanks, and thank you very much Rakesh ji once again. Thank you, Sagar Jai Jinender. Thank you, Rakesh ji, for your valuable time to Jito Business Network Meet the Mentor program. And I would like to say to all here that Rakesh ji is also my mentor in a way for agriculture and agripreneurship. In a short span of time, I learned a lot from him, and I will continue to do so. And because his knowledge is vast, and as you rightly said, and you have seen 360-degree knowledge. So backward integration and forward integration is the key takeaway for me particularly today. And I wish that every one of you who have given their precious time here have got something to basically think about it. And if you want to connect with Rakesh ji, we are ready, happy to help you. And we wish that he will be soon a mentor on board with JBN, so that you can get his mentorship also one-to-one. Thank you, Rakesh ji, again, and thank you the entire team, Man, Divya, Rakesh ji, and everyone who has supported this Meet the Mentor program. And now we invite you to please suggest the name of the mentor also with whom you want this session to be conducted, and we will definitely try our best to get them for you. Thank you very much. Dhanyavad. Stay safe, stay healthy. And thank you, Sanjay ji, for completely ideating this entire program, which is
becoming successful every week, every day, every week, because I have got a lot of mentors and I'm doing a lot of mentoring. So it is a dual role. So I request all the audience, if you want to become a mentor, don't forget that, you can get a mentor, but you should mentor also. So it's like life is like, you give and take, and you will enjoy. The more you give, the more you get. Dhanyavad. Thank you so much. Thank you, Rishabh-ji, and thank you everyone for being here. So stay Thank you, tuned. thank you so much. Yes, next mentorship, MTM Meet the Mentor series is scheduled on 30th of May. So stay tuned.